Good morning, my dear students. Today's my topic is director sphere. Let us do a theorem related to the director sphere. So, what is the statement of director sphere? To find the locus of point of intersection of three mutually perpendicular tangent plane to the central conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1. Right? Let us start the theorem. Given conicoid is this. This is the equation of the conicoid. Now, let one of the three mutually perpendicular tangent plane is this one, right? तो equation है ये tangent plane की. This is L1x plus M1y plus N1z equal to P1, right? And we know that कि condition अगर ये आपका tangent plane है तो इससे related condition क्या होती है? L1 square by A plus M1 square by B plus N1 square by C equal to P1 square. ये condition होती है, आपको पता है, क्योंकि लास्ट जितनी भी थ्योरम्स है वहाँ पर हम ये स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ से अगर मैं P1 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू आई P1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाय A प्लस M1 स्क्वायर बाय B प्लस N1 स्क्वायर बाय C. नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या मिलेगा? L1x प्लस M1y प्लस N1z विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन. सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा टेंजेंट प्लेन है L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू P2 and third one is L3x plus M3y plus N3z equal to P3, right? So we have to find out the values of P2 and P3. Now replacing the P2 and P3 by these values, we will find out these two tangent planes, right? So these are three tangent planes. Now what is our target? Our target is to find the locus, right? To find the locus, we have to eliminate L1 M1 M1 and L2 M2 N2. Similarly, L3 M3 and N3. So for eliminating these values, what we'll do? Squaring and adding 3, 4 and 5. आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करना है? स्क्वायर करना है और उन सबको ऐड करना है. तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग करनी है, वाई स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट, सिमिलरली जेड स्क्वायर वाली टर्म आपको सेपरेट करनी है, सिमिलरली एक्स वाई, 2yz, 2zx and without x square, without y square, without z square, without 2xy, 2yz and 2zx terms are to be placed on the right hand side. So these are without x square, without y square, etc. Now we know that if this is your x-axis, right? This is your x-axis, this is your y-axis, right? This is your y-axis. Similarly, if this is z-axis, then here L1 and L2 and L3, similarly M1, M2, M3, N1, N2 and N3. Okay. So if there is a point on x-axis is given by this L1, right, comma 0. What is the coordinate for y-axis? Here 0. Similarly, for the coordinate of the z-axis is also 0. So this is the point on x-axis L1 0 0. Similarly, second point is L2 0 0, L3 0 0, and here 0 M1 0 0, 0 M2 0 0. Similarly, here 0 0 N1. So these are three mutually perpendicular axes, and hence we can say that L1 square plus L2 square plus L3 square, M1 square plus M2 square plus M3 square equal to 1. Similarly, N1 square plus N2 square plus M3 square equal to 1. And here these are mutually perpendicular. So product of L1 M1 plus L2 M2 plus L3 M3 should be equal to 0. Similarly, this is also equal to 0 and this one also equal to 0. Now replacing these values by 1 and 0, and after solving all these equations we get x square plus y square plus z square equal to 1 by A, 1 by B plus 1 by C. Right? This is the equation of the sphere. And what is the center? Center is origin, and the coordinate for origin is given by this 0 0 and 0. So students, you can say that the locus is director sphere of the conicoid, right? So what is director sphere of the conicoid? Locus है किसका? Central conicoid का, ठीक है ना? उनकी जो mutually perpendicular planes थे उनकी help से जो आपका एक locus बना है, जो path बना है, right? वो एक sphere बना है और उस sphere को ही हम लोग क्या कहेंगे? Director sphere of the conicoid, right? Okay. Now come to the next point. This is your director sphere of the ellipsoid, right? So locus of the point of intersection of three mutually perpendicular tangent plane to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1 is given by this. ये भी आपका एक sphere की इक्वेशन है जहाँ पे सेंटर आपका 0 0 0 रहेगा,
ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ प्रूव करके दिखाया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से फिर से वही उनका स्क्वायर और ऐड करोगे और सॉल्व करके आपके पास एक स्फीयर आ जाएगा, और वो स्फीयर किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी को आप क्या कहेंगे, डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द एलिप्सॉइड। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर लाइंस पे आपको इसको प्रूव करना है, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल। The normal at any point P of a surface is a straight line passing through point P and perpendicular to the tangent plane at P. So we will do a theorem related to the normal. Okay, now come to the theorem. Equation of the normal. अब आपको क्या करना है, नॉर्मल की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने अभी जैसे आपको बताया, ये आपका एलिप्सॉइड है, ये टेंजेंट प्लेन है। तो मैंने कहा नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक लाइन है जो उस पॉइंट P से भी पास करेगी और टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका टेंजेंट प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो किस तरह से हम लोग अपनी थ्योरम को करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एलिप्सॉइड की इक्वेशन कंसीडर की है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय। आपको पता है कि अगर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे इसको रिप्लेस करते हैं, एक्स एक्स1 बाय ए स्क्वायर वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। पता है आपको कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 से रिप्लेस करना होता है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना होता है, और ऐसे जेड स्क्वायर को जेड जेड वन से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। एंड यू नो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल टू दीज। जो आपके पास यहाँ पर x का कॉफिशिएंट होगा वो आपका x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन होगा। सिमिलरली जो y का कॉफिशिएंट होगा y1 स्क्वायर बाय b वो आपके y के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस। सिमिलरली z1 स्क्वायर बाय c इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू z एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, आपको क्या लाइन की इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स1 बाय एक्स1 स्क्वायर बाय ए, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y1 बाय बी स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z1 बाय सी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, राइट। तो अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, से मैंने कहा कि आपके पास एक पॉइंट है से 1, 2, ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने कहा कि आपके पास 3 है एक पॉइंट जेड एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट आपके पास है 1, 2 एंड 3। तो अगर इस पॉइंट को आप यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आपको आपकी जो इक्वेशन है किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कहते हैं सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। सेकंड फॉर्म नॉर्मल की हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको क्या करना है, करली एफ बाय करली एक्स, मीन्स ये फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया है, तो करली एफ बाय करली एक्स आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तो y एक्सिस और z एक्सिस मीन्स y और z को एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करते हो, ठीक है। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। जब आप y के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सिमिलरली फॉर z, देन करली एफ बाई करली x1। अब आप x1 के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो x को रिप्लेस कर दीजिए x1 से, सिमिलरली y को y1 से और z को z1 से, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी कुछ ये आ जाएगी, x माइनस एक्स1 ओवर 1/2 करली एफ बाई करली x1, y माइनस y1 ओवर दिस वन, सिमिलरली, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड फॉर्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी। कहते हैं थर्ड फॉर्म, ये 2 मार्क्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कह सकता है वो कि डायरेक्शन को आपको नॉर्मल की इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है ना, उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स बताओ, तो आपको 3 डिफरेंट फॉर्म इस तरह से देनी है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगी स्टूडेंट, P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 0, 0 ऑन द टेंजेंट प्लेन टू, देन ये चीज आपको पता है कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरह से होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z1 बाय c स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। उसका आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये P आपके पास जो है आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी परपेंडिकुलर की इस तरह से। फिर डायरेक्शन को साइंस जो है ये आपको पता ही है किस तरह से फाइंड आउट करना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन को साइंस आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 एंड z1।
ठीक है। तो 3 डिफरेंट फॉर्म स्टूडेंट हमने पढ़ ली। एक आपने जो है इस तरह से, दूसरा लेंथ फाइंड आउट करके आपने कर ली है, तीसरा हमने डेरिवेटिव लेके कर लिया, और एक आप जो मैंने अभी थ्योरम से आपको बताया वो भी हो गई। तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो गई आपके पास। तो अगर आपका 2 मार्क्स में डिफरेंट फॉर्म पूछी जाती है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इसको करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द टॉपिक इज नंबर ऑफ नॉर्मल्स। कहते हैं कि टू प्रूव दैट देयर आर 6 पॉइंट ऑन एन इलिप्सॉइड, द नॉर्मल एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा। कहते हैं कि 6 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से नॉर्मल पास करेगी, ठीक है ना। टू प्रूव दैट देयर आर 6 पॉइंट ऑन एन इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड पे 6 पॉइंट्स होंगे, द नॉर्मल एट विच पास थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा। दैट मीन्स टू प्रूव दैट द 6 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द इलिप्सॉइड। भाई आपको क्या करना है, इलिप्सॉइड पे क्या करना है, आपको 6 डिफरेंट नॉर्मल्स ड्रॉ करने एक पर्टिकुलर पॉइंट से। आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इलिप्सॉइड पे क्या कर सकते हैं, 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो देखो कैसे हमें इसको स्टार्ट करना है। लेट द गिवन इलिप्सॉइड इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कहते हैं कि नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये अभी पीछे देखो फाइंड आउट किया था हमने नॉर्मल की इक्वेशन, क्या था, x माइनस x1 ओवर x1 बाय a स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y1 बाय b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z1 बाय c स्क्वायर। तो ये नॉर्मल की आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, क्योंकि अभी लास्ट उसमें मैंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। कहते हैं नॉर्मल ना अल्फा बीटा गामा से पास करता है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा से पास करता है तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी विल रिप्लेस x बाय अल्फा, y बाय बीटा एंड z बाय गामा। सो वी विल गेट दिस वन, ठीक है। अब आगे आओ, फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू k, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी, तो मैंने सपोज कर लिया कि वो कांस्टेंट क्या है, कि अब आपको क्या करना है, अल्फा माइनस x1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू k पुट करना है, सिंप्लीफाई करके अल्फा फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सेकंड वाला, और k को सॉल्व करोगे तो बीटा आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे इसके साथ तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे, वहां से आपको फिर क्या करना है, x1 y1 और z1 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो x1 आप फाइंड आउट कर लेंगे, y1 कर लेंगे और z1 कर लेंगे। बट द पॉइंट x1 y1 z1 लाई ऑन द इक्वेशन नंबर 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, जो इलिप्सॉइड है, अगर ये पॉइंट आपका इलिप्सॉइड पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन थी उसमें x1 को रिप्लेस कर दोगे इस क्वांटिटी से, सिमिलरली y1 को इससे और z1 को इससे, ठीक है। रिप्लेस करके आपके पास आ गया ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर ओपन करने हैं, तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली b पहले से स्क्वायर है ना तो पावर 4 हो जाएगी, और बीटा स्क्वायर, सिमिलरली c रेज टू द पावर 4 गामा स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट नीचे a स्क्वायर चल रहा है, जब पावर 4 होगी तो एक a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट से बचेगा a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय दिस वन, सिमिलरली b स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गामा स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस k होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस k होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा आपका। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के साथ ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, तो ये देखो दोनों टर्म्स आ गई है, ठीक है। एलसीएम लेना है आपको। उसके बाद सिमिलरली b स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाती है जब आप सॉल्व करते हैं। सिमिलरली c स्क्वायर गामा स्क्वायर के साथ ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, दिस इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, क्योंकि नीचे एलसीएम आया था तो जब आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म ये आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इक्वेशन नंबर जो ये 4 है ना आपके पास, दिस इज द 6 डिग्री इन k। तो देखो 6 डिग्री कैसे बन रही है k में, ध्यान से देखना इधर, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एक स्क्वायर पावर यहाँ से आएगी, एक स्क्वायर वाली पावर यहाँ से आएगी, एक स्क्वायर वाली पावर यहाँ से आएगी। पावर्स आपको पता है कि मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाती हैं। तो k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी पावर हो जाएगी k की, 6 पावर हो जाएगी। तो आपको ये यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पे k में आपके पास जो इक्वेशन चलेगी ये 6 डिग्री में चलेगी। और ये चीज़ आपको पता है जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। सो एंड हैंस गिव 6 वैल्यूज ऑफ k। व्हेन दीज वैल्यूज ऑफ k आर पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 पे जाओ वापस, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 ये। तो देखो k की एक वैल्यू आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, k की 6 वैल्यूज आ रही हैं। अब 6 की 6 वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यस 6 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। गुड। तो 6 पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे
तो वी गेट द 6 पॉइंट नॉर्मल एट विच दिस अल्फा बीटा गामा पासेस, ठीक है ना। तो यही कह रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, उस एलिप्सॉइड पे 6 नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। करोलरी मीन्स एक शॉर्ट रिजल्ट यहीं से डिराइव कर रखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ नॉर्मल आर दिस वन। ये तो पता ही चली गया होगा आपको कि अगर आपके पास ये एलिप्सॉइड है इस तरह से और आप इसको नॉर्मल यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो यही तो क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उसके लिए ये आएंगे आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से 4 हो गई, एक और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो इस तरह से, और स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, ये जितने भी होंगे ना सारी परपेंडिकुलर, तभी तो नॉर्मल बोल रहे हैं आप उनको, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का काम, देखो एक के की वैल्यू आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड मिल जाएगा, इस तरह से ये थर्ड आपको मिल जाएगा, इसी तरह से यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा और ये वाला और फिर ये, तो 6 आपके पास फुट आ जाएंगे यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये अगर आपका ना एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस तरह से ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको गिवन होंगे कि बताओ इनमें से कौन सा फुट ऑफ नॉर्मल है या नहीं है, आपको एक जो है राइट आंसर होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे, वो आप लगा सकते हैं। या फिर मान लो कि जैसे ऑप्शन में ऐसे आपको दे दिया, एक ऑप्शन में आपको 6 के 6 पॉइंट्स दे दिए, नेक्स्ट में दे दिया इस तरह से, तो आपको उनमें से सर्च करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स हैं कौन से नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू भी इस पे आ सकता है क्योंकि के की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है क्यूबिक कर्व थ्रू दी फिट ऑफ नॉर्मल्स, क्यूबिक कर्व्स, ठीक है। टू प्रूव दैट, थ्योरम आपको दे रखी है यहाँ पे, टू प्रूव दैट द 6 फीट ऑफ द नॉर्मल्स, जो 6 आपने पॉइंट्स अभी लिए थे और नॉर्मल ड्रॉ की थी, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन एन एलिप्सॉइड आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड एंड अ सर्टेन क्यूबिक कर्व। कहते हैं कि जहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया था ऐसे, है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकती है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो इनकी हेल्प से बनेगा ना, नीचे जो ये पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, ये क्यूबिक कर्व बनेगी। ये जो नीचे आपके पास आ रहे हैं पॉइंट, इनकी हेल्प से आपके पास क्या बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगी। देखो 5 हो गए ना, एक और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है। इस तरह से जो ये एलिप्सॉइड होगा, तो ये जो नीचे पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, इसकी हेल्प से क्या मिलेगा आपको, एक क्यूबिक कर्व मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि एलिप्सॉइड, इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड एंड अ सर्टेन क्यूबिक कर्व, एक आपके पास क्यूबिक कर्व है, एक एलिप्सॉइड है ना, उनकी इंटरसेक्शन से जो आपको मिलेगा ना, वो क्या होंगे, 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे मुझे इसको स्टार्ट करना है, वेट अ मिनट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा आपको, एलिप्सॉइड, तो मैंने एलिप्सॉइड की इक्वेशन यहाँ लिखी है, x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि एक पॉइंट मैंने, क्योंकि जिस पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना है वो पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, तो वो पॉइंट मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू इक्वेशन नंबर 1। कहता है कि मान लीजिए आपका ये एलिप्सॉइड है इस तरह से, और ये जो पॉइंट है ना अल्फा बीटा गामा, इससे आपने एक इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है ना, इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये फुट है इस नॉर्मल का, तो बच्चों ये फुट ही तो है, तो ये इसके जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि x1 = दिस, अभी मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था ना कि फुट कैसे फाइंड आउट करने हैं, a² / अल्फा ओवर a² प्लस के and y1 = b² बीटा ओवर b² प्लस के। सिमिलरली z1 = c² गामा ओवर c² प्लस के, अभी निकाले थे मैंने। अब कहते हैं लोकस ऑफ दिस, अब आपको लोकस फाइंड आउट करना है ना x1 y1 z1 के लिए। तो लोकस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको किसी पॉइंट के लिए लोकस फाइंड आउट करना है, तो आप इन पर्टिकुलर पॉइंट को किससे चेंज कर दो, आर्बिट्रेरी पॉइंट x y z से। तो ये किससे रिप्लेस हो गए, x y z से। वेट के इज द पैरामीटर, 6 वैल्यूज आएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व सेकंड, ये जो आपके पास आएगी विद एनी प्लेन, प्लेन आपके पास ये है क्योंकि उससे प्लेन जो बनेगा वो क्या आएगा, ux + vy + wz + d = 0, ठीक है। ये आपने एक प्लेन कंसिडर कर लिया। ये क्या करता है, इस कर्व जो यहाँ से बनेगी आपको आपके पास, उससे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। आर गिवन बाय, अब आपने क्या करना है, x को रिप्लेस कर दो, y को, z को इन वैल्यूज से। तो यहाँ पे जैसे आप रिप्लेस करोगे दिस इज इक्वल टू 0, फिर इसको एलसीएम के साथ आपने सॉल्व किया हुआ है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ना, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ना, ये क्या है, k में
3 वैल्यूज ऑफ के, क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखो बच्चों कैसे क्यूबिक इक्वेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो डी के साइड में मल्टीप्लाई में क्या है, ए स्क्वायर प्लस के, बी स्क्वायर प्लस के, सी स्क्वायर प्लस के। तो कितनी वैल्यूज हैं के की, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो के कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी के की, 3 रहेगी। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो क्यूबिक है तो 3 वैल्यूज मिलेंगी आपको। एंड हेंस द कर्व सेकंड, जो आपके पास सेकंड आई थी, मीट्स द प्लेन 3 जो ये प्लेन था इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स एंड हेंस द कर्व इज अ क्यूबिक कर्व विच प्रूव्स द रिजल्ट। भाई जब भी इंटरसेक्शन हुआ तो आपको 3 पॉइंट्स मिले, तो 3 पॉइंट तो क्यूबिक कर्व में ही मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक कर्व होगी। ठीक है ना। तो एलिप्सॉइड और क्यूबिक कर्व की इंटरसेक्शन से आपको सारे क्या मिलेंगे, फीट मिलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रिक कोन थ्रू द 6 कंकरेंट नॉर्मल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही एक थ्योरम आपको गिवन है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, थ्योरम इज टू प्रूव दैट 6 नॉर्मल फ्रॉम ए पॉइंट, जो 6 नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो ना इलिप्सॉइड पे, लाई ऑन द कर्व ऑफ सेकंड डिग्री। ये तो पता ही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो होती है उसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ना भाई वो क्या करेगा, जो भी होगा ना वो 6 नॉर्मल्स वो कहाँ लाई करेंगे, कर्व पे लाई करेंगे। वो कर्व कैसी होगी, सेकंड डिग्री की होगी। ठीक है, 6 के 6 नॉर्मल आपके वहां पर लाई करेंगे। तो चलो, लेट द गिवन एलिप्सॉइड इज दिस वन, इक्वेशन नॉर्मल की लिख सकते हो। फर्स्ट आर्टिकल आपको कराया था वहां से, x माइनस x1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y1 बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z1 बाय सी स्क्वायर। आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से पास करती है, अल्फा बीटा गामा से। तो x को रिप्लेस कर दो अल्फा से, y को रिप्लेस कर दो बीटा से, और z को किससे रिप्लेस कर देंगे, गामा से, और दिस इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, फर्स्ट और के को सॉल्व कर लो, ऐसे सेकंड और के को सॉल्व कर लो, और थर्ड और के को सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या निकालोगे यहाँ से, अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई x1 प्लस के x1 बाय ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास कुछ ही। सिमिलरली यहाँ से क्या निकालोगे, बी स्क्वायर प्लस के। देखो इसने कहा है कि मैं क्या निकाल लूँ, ए स्क्वायर प्लस के, बी स्क्वायर प्लस के, सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस के। ये वैल्यूज इसने निकालनी है। ये वैल्यूज निकाल के क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 3 को तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो। देखो ए स्क्वायर प्लस के को किससे कहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, कर दिया मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले टर्म ऐड हो जाएंगी, राइट वाली राइट में ऐड हो जाएंगी। इसको किससे करना था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, कर दिया। इसको किससे करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, करके और ऐड कर दिया। अब जो राइट हैंड साइड वाले टर्म है वो भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऐड होके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू रखी हुई है ना, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, इसको इसने क्या पुट कर दिया, ओ पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, इसको ओ पुट कर दिया। जीरो नहीं है, ये क्या है, ओ। ठीक है, और साइड में ये आपका चलता ही रहेगा इस तरह से। या यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लोकस फाइंड आउट करना है ना, तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x y और z से। तो यहाँ से मैंने वही काम किया, ए स्क्वायर अल्फा बाय x1 था, क्योंकि मुझे लोकस चाहिए, दैट्स वाई x1 इज रिप्लेस्ड बाय x, सिमिलरली y1 इज रिप्लेस्ड बाय y एंड z1 इज रिप्लेस्ड बाय z, हेंस वी गेट दिस इक्वेशन, राइट। अब आप ये बताओ कि कितने डिग्री की इक्वेशन है। देखो yz, zx एंड xy सेकेंड डिग्री की है ना, दिस इज द कोन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये बच्चों क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कोन। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल जब करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको कोन की इक्वेशन भी बताऊंगी। अदरवाइज आपको मैंने जब फर्स्ट लेक्चर मैंने कराया था आपको, तो मैंने डिफरेंट 10 स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको बताई थी, तो वहाँ कॉन की इक्वेशन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी कॉन की, सेकेंड डिग्री की है, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए, क्वाड्रिक कोन थ्रू द 6 कंकरेंट नॉर्मल। सबसे पहला काम जो आपको एलिप्सॉइड गिवन है उसकी हेल्प से नॉर्मल लिखो। नॉर्मल का हम फर्स्ट आर्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना, और वहां से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। सिर्फ आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो क्वांटिटीज यहाँ पे बन के आएंगी ना, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है। तो पहला जो आपके पास आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। लेफ्ट वाली क्वांटिटी लेफ्ट में ऐड हो जाएंगी, राइट वाली क्वांटिटी राइट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपके ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है
और आपको क्या करना है, उसका पोलर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट पोलर जो होता है ना, आपके पास एक इक्वेशन होती है। ये चीज़ तो आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपको करा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर जब हम लोगों ने किया था डिस्कस, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि पोलर प्लेन क्या होता है ना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक आपको कॉनिकॉइड गिवन है, वो कॉनिकॉइड क्या है, ax² + by² + cz² = 1। ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है यहाँ पर P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। इस पॉइंट P की हेल्प से मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है, और ये जो Q, ये आपका Q पॉइंट है, और ये आपका जो है R पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने QR यहाँ एक कोड का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया S, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ आपको, ये जो S पॉइंट है ये क्या करता है, आपके पास ये जो PQR लाइन है ना, सच दैट PS इज डिवाइडेड। ये जो PS है स्टूडेंट, देखो P और ये S, ये जो पॉइंट S आपने लिया है वो इस तरह से लिया है कि PS जो है Q, इसको क्या करता है, K/1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, K/1 में डिवाइड करता है। S P a point on a line QR such that PS is divided internally at point Q and externally at point R in the same ratio। और वो रेशियो क्या है आपका, K/1। ठीक है, कह रहे इंटरनली और एक्सटर्नली ना सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो PS इंटरनली डिवाइड हो रहा है Q की हेल्प से, और आप देख सकते हैं P, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ P ले लूँ और ये पॉइंट आपका जो R है, तो PS लाइन जो है R के द्वारा यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है। रेशियो आपको सेम लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो भाई यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज़ कर लूँ, देखो PS आपके पास एक लाइन है ना, और Q एक पॉइंट है, K/1 में डिवाइड करता है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। तो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आता है, ओके। तो इस तरह से आपको करना होता है। ये जो 1 होता है ये इसके जो आपके पास कॉफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये जो k होता है वो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, और फिर उनको ऐड करके ऐसे रख देते हैं। पता है x1 × 1, फिर x किससे मल्टीप्लाई हो, देखो यहाँ से 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ, k किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। तो क्या आएगा, x k + x1 ओवर, नीचे जो भी ये रेशियो होता है उनका ऐड करके रखना होता है, तो 1 + k। सिमिलरली आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। ठीक है, इतना हो गया। कहता है Q ना इक्वेशन नंबर 1 पे लाई करता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो पॉइंट Q है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो Q पॉइंट नजर आ रहा है। Q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे। आपके पास जो ये कर्व है इस पे लाई करता है ना, और इसकी इक्वेशन क्या थी, ax² + by² + cz² = 1। तो आपने क्या किया, इस Q को यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, x को किससे रिप्लेस कर दिया, इस वाले कोऑर्डिनेट से, y को इससे और z को इससे। सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। अब या मुझे ये बताओ, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सेकंड डिग्री के तो भाई 2 ही रूट्स आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है K में 2 रूट्स आएंगे। ऑल्सो हैज इक्वल एंड अपोजिट रूट एज PS इज डिवाइडेड हार्मोनिकली एट Q एंड R। ठीक है ना, हार्मोनिकली अगर डिवाइड होता है तो आपको ध्यान रखना है इक्वल और अपोजिट रूट्स होते हैं। अब ये बताओ, रूट्स इक्वल है, ठीक है ना। मान लिया एक रूट आपका A, दूसरा रूट भाई इक्वल है तो दूसरा रूट भी A ही होगा, लेकिन कहते हैं अपोजिट है। अपोजिट है तो साइन ही तो अपोजिट होंगे, A और दूसरा -A। ठीक है, तो एक रूट अगर आपका A है इस तरह से, एक सेकेंड मैं इसको 1 ही ले लेती हूँ, आपको 1 से आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने एक रूट लिया 1, दूसरा रूट भी क्या है 1। अब इसने कहा इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, तो एक रूट क्या रहेगा -1। ठीक है, तो 1 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, सम क्या आएगा रूट्स का, 0 ना। सम क्या आएगा 0। तो सम अगर आपके पास 0 आ गया, यही आपको लिखना है यहाँ पे। देखो क्या किया इसने यहाँ पर, देखो इसको अब एक बार यहाँ पर, सम ऑफ रूट इक्वल टू 0। आपको पता है सम ऑफ रूट कैसे लिखा जाता है, ध्यान होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखते थे तो क्या करते थे, k का जो कोएफिशिएंट था वही तो होता था सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, ax x1 + by y1 + cz z1 - 1। इसको क्या रख दो, इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखो 2 × समथिंग इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट अगर 2 क्वांटिटीज की 0 है तो उनमें से एक को 0 होना पड़ता है ना। लेकिन 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हैंस ax x1 + by y1 + cz z1 - 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास ये आ गया। और जैसा कि आपको नजर आ ही रहा है, ये इक्वेशन किसकी है, प्लेन की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कॉनिकॉइड।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना था। करोलरी क्या दी हुई ये भी देख लो एक बार। इफ P इज द सेंट्रल कॉनिकॉइड देन द पोलर प्लेन ऑफ P इज टेंजेंट प्लेन। कहते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड अगर है ना तो ये जो पोलर प्लेन बनेगा ना ये क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन बनेगा। क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर आ जाती है आपको कि प्रूव दैट कि पोलर प्लेन जो है वो टेंजेंट प्लेन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाला आर्टिकल ही इसी में प्रूव कर देना है एज इट इज, ठीक है ना। तो ये आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए पोलर प्लेन जो है टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। क्या है कि पी क्यू आर एक आपको इस तरह से ऐसे P डैश Q डैश R डैश ये क्या दिए हुए हैं, जो 6 आपने नॉर्मल ड्रॉ किए थे ना उनके फीट दिए हुए हैं। जैसे आपने फर्स्ट इस तरह से ड्रॉ किया तो ये एक पॉइंट आ गया, ऐसे ही मान लो इसी पॉइंट से आपने सेकंड ड्रॉ किया, ये सेकंड पॉइंट Q आ गया, ये R, ठीक है, ये P डैश, ठीक है, ये आपका Q डैश और ये आपका लास्ट में जो है R डैश। तो इस तरह से ये जो नीचे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना ये इनके नाम दिए हुए हैं इसने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम आगे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि भाई यहाँ पर जो 6 फीट ऑफ नॉर्मल है टू द पॉइंट टू द इलिप्सॉइड आर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द प्लेन PQR इज गिवन बाय lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ठीक है। एंड देन द प्लेन P डैश Q डैश R डैश इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है। प्लेन PQR तो इस तरह से होगा, तो P डैश Q डैश R डैश के लिए क्या बनेगा, x बाई a स्क्वायर इंटू l, ठीक है ना, ये बनेगा। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले आपको इलिप्सॉइड गिवन है, एक प्लेन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन मैंने क्या सपोज कर लिया खुद से, l को रिप्लेस कर दिया l डैश से, ऐसे m को m डैश और n को n डैश से रिप्लेस करके और मैंने एक नया प्लेन बना दिया। ज्वाइंट इक्वेशन जब आपको प्लेन की लिखनी होती है ना तो क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैंने वही काम किया, फर्स्ट जो आपको गिवन था वो भी ले लिया और सेकंड वाला भी प्रोडक्ट करके क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 जो आपको गिवन है एंड द पेयर ऑफ प्लेन दिस। ज्वाइंट इक्वेशन बनाई ना तो ये पेयर ही तो बना प्लेन्स का, वो कैसे होगी, कॉनिकॉइड। याद करो कैसे लिखना होता था, जो भी आपको गिवन है इक्वेशन क्या लिखते थे, देखो वहां स्फीयर होता था प्लस k करके प्लेन का इक्वेशन, याद आ रहा है आपको या नहीं। स्फीयर की इक्वेशन प्लस k इस तरह से, एक सेकेंड, इनटू इक्वेशन ऑफ प्लेन, इनटू इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है या नहीं, सर्कल भी फाइंड आउट कर रहा था हमने इस तरह से, स्फीयर प्लस k इंटू प्लेन इक्वल टू 0। ये आपका किसकी इक्वेशन हो जाती है, किसी कॉनिकॉइड की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉनिकॉइड की आपकी इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद नाउ इफ इक्वेशन नंबर 5 इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ द कोन थ्रू द फीट p q and r, p dash q dash r dash of the 6 normal from the given point to the ellipsoid, then coefficient of x square equal to coefficient of y square equal to coefficient of z square equal to that if this represent the equation of cone then the coefficient of x square y square and z square all are equal and equal to constant term which is equal to 0. Now putting all these value, because in equation of cone only the powers of x y y z z x, आपको ये टर्म नजर आती है x y y z और z x, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, ऐसे ही z स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो भी क्या आ जाएगा 0। तो जब x स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 0 पुट करो, ऐसे y स्क्वायर के लिए, z स्क्वायर के लिए, तो आपके पास l डैश m डैश और n डैश की वैल्यूज आ जाएंगी। उनको सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपके पास जो है p डैश भी निकल आएगा। इधर से सॉल्व करके इन वैल्यूज को वापस इक्वेशन में डाल दो। यही चाहिए था आपको, l डैश m डैश और n डैश और p डैश। तो इन वैल्यूज को जब मैं यूज करूंगी तो मुझे गिवन जो मुझे निकालना था प्लेन की इक्वेशन वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगी, x बाय a स्क्वायर इंटू एल प्लस y अपॉन b स्क्वायर इंटू एम प्लस z ओवर c स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर p डैश q डैश एंड r डैश, ठीक है। तो क्या करना था आपने, सबसे पहला काम तो एक खुद से सपोज कर लेना था, फिर उनकी ज्वाइंट इक्वेशन कंसीडर करनी थी, एक कॉनिकॉइड आपको कंसीडर करना था, वो मैंने आपको मेथड बता दिया। जो भी आपको गिवन इक्वेशन है प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। कॉन की इक्वेशन है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट कॉन की इक्वेशन में नहीं होते हैं, उसको 0 पुट कर दो तो आपको l मिल जाएगा, l डैश मिल जाएगा, m डैश n डैश, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, p डैश भी आपको मिल जाएगा। सारी इक्वेशंस को जब आप रिप्लेस कर दोगे l डैश m डैश n डैश और p डैश को, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी। ये क्या होगा आपके पास, प्लेन की इक्वेशन होगी। कौन सा प्लेन होगा ये, p डैश q डैश r डैश, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है,
if the polar plane of a point P with respect to conicoid this passes through the point Q, then the polar plane of Q also passes through the P. तो कहते हैं रेसिप्रोकल. अब ये चीज़ तो आपको पता ही है, अगर एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a. 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2. 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3. ओके, तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेन की. तो प्लेन के लिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी पॉइंट का पोलर प्लेन किसी दूसरे पॉइंट से पास करता है ना, तो उस पॉइंट का जो पोलर प्लेन होगा ना वो गिवन पॉइंट के पोलर प्लेन से पास करेगा. ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं. पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट P पासेस थ्रू पॉइंट Q. P का पोलर प्लेन कहाँ से पास कर रहा है Q का, तो Q का पोलर प्लेन कहाँ से पास करेगा P से. सिंपल, दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. ओके, तो गिवन कॉनिकॉइड देखो, इसको स्टार्ट कैसे थ्योरम को अपने अटेम्प्ट करना है. ax² + by² + cz² = 1. ओके, मैंने कहा P और Q दो पॉइंट्स आपके पास. P के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q के लिए आपने ले लिए x2 y2 z2. पोलर प्लेन तो लिखना आता है, अभी आपको बताया था ax x1 + by y1 + cz z1 = 1. ये x1 y1 z1 मीन्स पॉइंट P के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है पोलर प्लेन. अभी आपने बोला P का पोलर प्लेन कहाँ से पास करता है, यस Q पॉइंट से पास करता है. तो अगर Q पॉइंट से पास करता है तो क्या करेगा, Q पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाय x2, y इज रिप्लेस्ड बाय y2 एंड z इज रिप्लेस्ड बाय z2. बस रिप्लेस करना है, इसको सॉल्व करके ये आ गया. ठीक है, इतना काम हो गया. अब आगे चलो, इक्वेशन इसको बोल दो 2. अब मुझे प्रूव करना है कि पोलर प्लेन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू 1 इज. कहते हैं पोलर प्लेन की बात करें ना इक्वेशन नंबर 1 के लिए, जो Q के लिए, ठीक है ना, Q पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा ax x2 + by y2 + cz z2 = 1. दिस पासिस थ्रू x1 y1 z1 इफ दिस इज इक्वल टू 1. भाई इसको किससे पास करा दो, पॉइंट P से पास करा दो, और पॉइंट P क्या था x1 y1 z1. तो जैसे आप इसको पास कराओगे तो आप देख सकते हैं जो आपके पास इक्वेशन ये वाली बनी थी, ध्यान से देखो इसको और इसको देखो, सेम ही है ना. तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि P का पोलर प्लेन अगर Q से पास करता है तो Q का पोलर प्लेन कहाँ से पास करेगा, P से पास करेगा. यही क्या है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये. ओके, एक और टॉपिक है हमारा पोल ऑफ अ गिवन प्लेन. तो बच्चों बता सकते हो कि पोल क्या होता है. यस, पोल इज अ पॉइंट, है ना. पोल क्या होता है, एक पॉइंट होता है. तो मुझे क्या करना है, पोल फाइंड आउट करना है. और इस तरह के जो थ्योरम्स हैं वो कई बार आप पीछे भी कर चुके हैं. पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है, पोल फाइंड आउट करना है किसी गिवन प्लेन के लिए. तो सिंपल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा टफ नहीं है. तो देखो कैसे हमें पोल फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आपको एक प्लेन गिवन होगा, एक कॉनिकॉइड गिवन होगा, मुझे पोल फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. तो चलो बात करते हैं x1 y1 z1. अब खुद से इसने मान लिया कि x1 y1 z1 आपका पोल है. अब मुझे मेरा जो टारगेट रहेगा, मुझे क्या करना है, x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस मेरा इतना सा काम है. तो पोलर प्लेन देखो, अभी मैंने आपको पोलर प्लेन लिखना सिखाया ना, तो x² को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से, y² को y1 से, z² को z1 से. तो इस तरह से आपके पास ये पोलर प्लेन आ जाएगा. लेकिन जो Lx + My + Nz = P है, इसके लिए आपको पोल फाइंड आउट करना है ना. तो जिस इक्वेशन के लिए, जिस प्लेन के लिए आपको पोल फाइंड आउट करना है, वो इक्वेशन खुद भी तो पोलर प्लेन होता है. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी. आपको अगर पोल फाइंड आउट करना है Lx My + Nz = P के लिए, तो ये इसके लिए किसका काम करेगी, पोलर प्लेन का काम करेगी. लेकिन आपने कैसे निकाला है पोलर प्लेन, ax x1 + by y1 + cz z1 = 1. दैट मीन्स ये दोनों तो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉफिशिएंट को कंपेयर करना है. x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ax1, यहाँ पर क्या है l, यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है by1, यहाँ क्या है my. तो जैसे ही कॉफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ax1/l = by1/m + cz1/n = 1/p. ठीक है, इस तरह से. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लो, ऐसे सेकंड और लास्ट, थर्ड और लास्ट सॉल्व करके x1 निकालो, क्या आएगा L/AP. सिमिलरली y1 = m/bp, z1 = n/cp. आ गए x1 y1 z1. यही तो फाइंड आउट करना था. ये क्या है, रिक्वायर्ड पोल है. ठीक है, आपके पास एलिमेंट की वैल्यू है, a और p की वैल्यू है b p c p. अगर आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पॉइंट पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी पोल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी पोलर प्लेन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो चलिए एक जो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, कंडीशन फॉर 2 प्लेन्स ऑफ कॉन्जुगेट. ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा. ये और कर लेते हैं हम यहाँ पे. कंडीशन ऑफ फॉर 2 प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट. भाई कॉन्जुगेट अगर 2 प्लेन्स हैं तो क्या कंडीशन होगी कि दोनों कॉन्जुगेट है. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट इस तरह से आ सकती है.
आपको डायरेक्ट भी जो है दे सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट, या फिर आपको ये गिवन होगा, स्टेटमेंट गिवन है तो आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इफ द पोल ऑफ ए प्लेन अल्फा with respect to the central conicoid this lie on the plane beta, then the pole of beta lie on alpha। कहते हैं कि अल्फा जो है ना प्लेन आपके पास, पोल ऑफ प्लेन अल्फा, आपके पास एक अल्फा प्लेन है, उसका पोल अगर बीटा पे लाई करता है तो बीटा प्लेन का जो पोल होगा वो कहाँ लाई करेगा, अल्फा पे लाई करेगा। दैट मीन्स कंडीशन दैट अ प्लेन L1x प्लस M1y, आपने एक प्लेन ले लिया, इसको मान लेते हैं ये अल्फा प्लेन है। सिमिलरली L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू P2, ये मैं मान लेती हूँ बीटा प्लेन है मेरा। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले मीन्स इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोल। उस पोल, वो जो पोल है ना वो कहाँ लाई करे, सेकंड वाले प्लेन पे। ऐसे ही मैं क्या प्रूव करूंगी, इसके लिए पोल फाइंड आउट करूंगी और वो पोल कहाँ लाई करे, इस पे लाई करे, तो वो दोनों प्लेन कैसे होंगे, कॉन्जुगेट प्लेन होंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन आपको गिवन है, इस तरह से पोल आपको गिवन है। यहाँ पे पोल इस प्लेन के लिए स्टूडेंट क्या होगा, अभी पीछे फाइंड आउट करना सिखाया था मैंने आपको, L1 बाय AP1, M1 बाय BP1, N1 बाय CP1, ध्यान है, अभी लास्ट आर्टिकल किया है, L बाय AP, M बाय BP, N बाय CP, ठीक है। तो इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिखा है। अब कहते हैं कि ये जो पोल है ना कहाँ लाई करता है, सेकंड वाले प्लेन पे लाई करता है। तो सेकंड वाले प्लेन को क्या करो, सेटिस्फाई करेगा, तो x को इससे रिप्लेस कर दो और y को सेकंड वाले और z को थर्ड कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे रख दिया, L1 L2 बाय दिस, इस तरह से। अब क्या किया यहाँ से, देखो P1 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 सब में से कॉमन लेके इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा। एज ऑल्सो पोल ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, सेकेंड जो प्लेन आपको गिवन था उसके लिए जो पोल है वो क्या है, L2 बाय A P2, M2 बाय B P2, N2 बाय C P2, ठीक है ना। अगर ये पोल इक्वेशन नंबर 1 पे लाई करता है तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, L1x, मीन्स यहाँ पे x, y और z को क्या करोगे, इससे रिप्लेस कर दो। x को किससे रिप्लेस करोगे, L2 बाय दिस, y को इससे, z को इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे P2 आपका कॉमन था, दिस इज इक्वल टू P1 P2 विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 3 एंड हैज द प्लेन आर कॉन्जुगेट प्लेन। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्जुगेट प्लेन्स कहलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है ना वो सेम आ रही है। ये देखो फर्स्ट के लिए आपके पास ये आया था, इसी तरह से सेकंड के लिए आपके पास ये आया था, तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम आई है, ठीक है। तो दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट प्लेन्स। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।